So during exercise, I get to procrastinate a lot. You get lots of thoughts, and you have lot of thinking going on, because your brain works really good at that time. So during today's exercise, I was having some thoughts like, if you want to be an engineer, you are supposed to have education for engineering. Like, if you want to be a doctor, you're supposed to have knowledge of medical sciences, right? Same goes for architecture, same goes for being an officer of some kind. If even if like you want to be a businessman, like if you want to be even a driver, you need to have knowledge of the car, right? This is what it is. It's about the education, that you need it in order to be something. Why this doesn't happen for our religion, like any religion, I must say. And for I am being Hindu, for my Hinduism also, is that without getting an education, that what is it being a Hindu, and what is Hinduism, what is Sanatan Dharma, what is Paramatma, what is Atma, the basis, the core knowledge of Sanatan Dharma. Without having knowledge of any of that, everyone wants to be and calls themselves Hindu. Everyone calls them that they are the believer, they are the belief. In reality, I feel like we are just beggars. We go to temple to beg in order to survive. We are not exactly believer. I think in some way, like, we should not call ourselves Hindu, that I am a Sanatan Dharmi or something, because we don't have knowledge of it. We haven't read Gita, we have not read Shastra, we have not read any Veda or Purana, we haven't had any education or any related to that even. And even further than that, it's a taboo. Oh, આ તો વેદ્યો છે, આ તો બધું ભગવાનમાં બહુ માને છે. अरे इसको तो बहुत वो भगवान भगवान बहुत है इसको. अरे वो तो बहुत रिलीजन है. अरे वो उनका तो बहुत अध्यात्म वगैरह में बहुत है. It's mostly frowned upon, or it's mostly looked down, rather say. And because of that, we are going away from the knowledge that our religion has to offer, and we are just blindly following what has been told and what has been suggested to us from numerous sources. We don't even go and check the credibility of that source. If it's beneficiary to us, we just accept it, we just adopt it. It depends on our benefits, how beneficial it is to us. It's to my business, to my family, for more money, for more comfort, more happiness. If it works, then the religion works, then religion is good for you. If it doesn't, the religion is bad, and I like to be atheist, there is no god and something like that. We start believing that, we start to be skeptical about our faith, and we start going for different faith. The transition of going from one religion to another religion happens very rarely, okay? But the transition between religion happens very frequently. From Hanuman Dada to going Ganpati, from Ganpati to going to Srinathji to Mahadevji to Amba to somebody else, to local, to that to Guru Ma, some Guru to Falana Guru, to Maharshi, to Mahasant, to that. We hop around like a frog from one faith to another in order for our benefits only. We never even try to read books of our religion. We never try to read Veda, we never try to read Purana, we never try to read any Shastra, we never try to read any, any religious. Even Gita, we don't try to read it. कोई मर जाता है तो उसके बाद वो गीता के 2-3 अध्याय वाँच लेते हैं, बस दैट्स इट, खत्म हो गया बात वहीं पे.
बाकी पूरी गीता बांचने का किसको टाइम है साहब। And then we start having this flag. We become the flag bearer of our religion, of our faith. That no, I am Hindu. हमारे हिंदुइज्म में ऐसा नहीं होता, हमारे रिलीजन में ये सब नहीं है, हमारी कम्युनिटी में ये सब नहीं है। Although we don't know anything about our religion, although we don't know anything about our faith, we just like to be the flag bearer, the blind flag bearer, जिसके हाथ में झंडा थमा दिया, पहले से आया हुआ, बस वो लेके चल दिया करो। उपनिषद में बहुत अच्छी बात कही है, इसीलिए उपनिषद में ना सभी धर्मों की बात आती है, एग्जाम्पल सभी जगह से आते हैं। और जो सही संत थे, जो सच्चे संत थे, वो कभी रिलीजन में विश्वास नहीं करते, ये देवी, वो भगवान, वो नहीं नहीं नहीं। दे ओनली बिलीव in we, like there is us, I, and there is one step ahead, the next level, that's it, done. आत्मा एंड परमात्मा, पूरा जग उसमें समा गया, सिंपल एज दैट। इट्स अ जायंट फिलोसॉफी। So my point is that if we don't have the education of our faith, of our belief, of our religion, how can we call ourselves the believer? How can we call ourselves that yes, we belong to that? Isn't that a fraud? कि जिसने इंजीनियरिंग का कोई नॉलेज नहीं लिया है बट खुद को इंजीनियर बता रहा है, जिसने डॉक्टरी का कोई नॉलेज नहीं लिया है, कोई एजुकेशन नहीं लिया है, बट वो खुद डॉक्टर बन बैठा है। ऐसे लोग जो कई होते हैं, हम उनको जेल में डाल देते हैं, उनको पकड़ के अंदर डाल देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, गालियां देते हैं, हड़दूत करते हैं। तो ऐसा हमारे खुद के बारे में तो होना चाहिए ना, क्योंकि हम तो हमारे धर्म के बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं है, जानने का प्रयास नहीं किया है, भेड़ चाल में चल दिए हैं। खुद कोई पुस्तक पढ़ने का हमने ट्राई नहीं किया है, हमने बस यही किया है, जो बोला गया सुना, बस चल दियो। खुद करने का टाइम किसके पास है ना? इट हैपन्स लाइक दैट। हमारी देशभक्ति भी तो उसके ऊपर आधारित हो गई है ना। भारत के बारे में हम कितना जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है? हमारे लिए तो दिल्ली बॉम्बे में जो होता है बस वही हो गया दुनिया में, चेन्नई तक नहीं जाते हम लोग तो। वी डोंट नो मच अबाउट कर्नाटका, वी डोंट नो अबाउट मध्य प्रदेश, वी डोंट नो ऑल द स्टेट्स। हाँ, दिल्ली बॉम्बे में जो हुआ बहुत हो गया, बस उसी से हमारा चल दिया। कोई कंपनी ने अपना प्रॉफिट बनाने के लिए आपको मसाले भरी न्यूज़ दे दी और हम चल दिए उसके साथ। हम हमारा ढूंढने का प्रयास नहीं करते, सोचना, खुद सोचना नहीं है हमें, सोचने की आलस है, खुद को एजुकेट करने की आलस है हमारी। अभी बहुत पहले, आई थिंक 5 साल पहले की बात है, और हर बार ये होता है, ये गीग होता है कि लाइक कोई ना कोई करता ही ऐसा है कि ऐसे माइक लेके स्ट्रीट पे निकल पड़ेगा 26 जनवरी को और लोगों को पूछेगा कि आपको राष्ट्रगीत पता है, राष्ट्रगीत क्या है, गा सकते हो पूरा? मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को पूरा राष्ट्रगीत नहीं आता, जनगणम पता नहीं होता, इतना नहीं याद रहता, और वंदे मातरम तो कदापि नहीं पूरा कर सकते हैं। उनको वो नहीं पता होता कि लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, उनको गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू से आगे बढ़ना ही नहीं है, और कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, मौलाना आज़ाद थे वगैरह थे, उनके बारे में कुछ जानना नहीं है। जिन्ना एग्जैक्टली कौन था ये सब कुछ नहीं जानना है, बस जिन्ना को हेट करो, सिंपल एज दैट। हमारा खुद का कुछ बनाना ही नहीं है,
खुद मेहनत करके कुछ एक्सप्लोर नहीं करना है, सच्चाई क्या है सच जानने का प्रयत्न नहीं करना है, बस अपना पूर्वाग्रह जो दूसरों ने दिया है वही बना के चल दिया। हमारी देशभक्ति उसके ऊपर आधारित हो गई है। हमारी देशभक्ति इतने पर आधार हो गई कि हम पाकिस्तान को कितना हेट करते हैं, इसके ऊपर हम देशभक्त कहलाते हैं। देशभक्ति तो इसके ऊपर होनी चाहिए ना कि कितना हम टैक्स भरते हैं। देशभक्ति तो इसके ऊपर होनी चाहिए ना कि कितना हम ट्रैफिक लॉस फॉलो करते हैं। देशभक्ति इसके ऊपर होनी चाहिए कि हम दूसरे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के कितने फॉलो करते हैं, उसके ऊपर देशभक्ति होनी चाहिए ना। क्योंकि देश तो ये लोग हैं, हम ये लोगों का कितना सम्मान करते हैं उसके ऊपर तो देशभक्ति होनी चाहिए ना। देशभक्ति सिर्फ पाकिस्तान को हेट करने से तो नहीं आती ना, या फिर पहले से जो पकड़ा दिया झंडा जो बोलते आए कि नहीं एंशियंट इंडिया में ये था, एंशियंट इंडिया में वो था, द ग्रेट एंशियंट इंडिया में वो था, बस वो सुन लिया और वही टेप हमने शुरू कर दी अपनी। दैट इज हाउ अवर देशभक्ति वर्क्स, है ना। ऐसा चल रहा है। खुद पुस्तक खोल के हमने कभी ट्राई नहीं किया है, कभी क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि सच ये सच है कि नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि एंशियंट इंडिया में ये था, उसको जानने का हमने कभी प्रयत्न नहीं किया है। बोल दिया, प्राउड फील हो गया, चल दिए, उसी पे ऊपर चल दिए। भारतीय होने का मतलब पता नहीं है, भारतीय का कोई नॉलेज नहीं है। हमारा राष्ट्रपति कौन है वो नहीं पता है हमारे। लाइक आप जो स्टेट में रह रहे हो उसके गवर्नर कौन है ये नहीं पता है। जीके नहीं है इतना, फिर भी हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन, वी आर ग्रेट इंडियंस, देशभक्त है। सोशल मीडिया पे वॉर खड़ी कर देते हैं बीइंग एन इंडियन, कि हमारे देश के ऊपर ऐसा क्यों बोला, ये बोलते हो सब चला देते हैं, अच्छे से दिल से चला देते हैं। चेस के प्यादे बन जाते हैं जिनको अपनी कोई सोच है ही नहीं, पीछे से धक्का है आगे चल दिए। Isn't it? The issue of us is that we are not sparing time to get knowledge. We are sparing time to make money and to be comfortable, and the mad race of to be developed. थ्री इडियट्स में जो वो आमिर खान बोलता है ना, ये चीज वो वही वाली चीज है। पैसा खुद में खुद आ जाएगा साहब, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इज द कोर ऑफ एवरीथिंग बडी, नॉलेज इज द कोर ऑफ एवरीथिंग। धर्म का नॉलेज होगा ना तो शांति, मोक्ष, सुख सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर धर्म का नॉलेज होगा। मीन सही नॉलेज, नॉलेज इन द सेंस वो पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बट वो जान के उसको अप्लाई करने का सही तरह से, दैट नॉलेज। देश का नॉलेज होगा तो देश में अच्छे से रह पाएंगे। देश खराब नहीं है, कोई देश खराब नहीं होता साहब। यूएसए में भी प्रॉब्लम है, यूके में भी प्रॉब्लम है, सभी डेवलप्ड देशों में भी प्रॉब्लम है ही। देश कभी खराब नहीं होता सर, प्रॉब्लम इज विद इन। देश का नॉलेज होगा, देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में, तो जिंदगी शांति से जी सकते हैं। देश अच्छा ही होता है, आपको आपका रास्ता निकालना आ जाएगा। सो थिंक अबाउट दैट। कोई धर्म खराब नहीं होता साहब। प्रॉब्लम यह है कि धर्म का नॉलेज लिए बगैर हम अपना झंडा लेके चल देते हैं। इस्लाम का कोई नॉलेज नहीं होता, बट कुछ इंसिडेंट्स हो गए इसलिए हम इस्लाम को हेट करने लगते हैं। कुछ इंसिडेंट्स हो गए तो हम हिंदुइज्म को हेट करने लगते हैं। कुछ इंसिडेंट्स हो गए तो हम सिखिज्म को हेट करने लगते हैं, बट ये जानने का प्रयत्न नहीं करते
इस्लाम को जानने का प्रयत्न नहीं करते, सनातन धर्म को जानने का प्रयत्न नहीं करते, जैनिज्म को जानने का प्रयत्न नहीं करते। हमें जानने की जानकारी के लिए हमारे पास समय नहीं रहता, हम समय वो यू नो निकाल नहीं पाते, क्योंकि पैसों की दौड़ है ना साहब, पैसों की दौड़ है। In order to resolve all the problems in our country and in our personal life and in our social life and everything, I believe the core is knowledge. Knowledge, knowledge, knowledge. ज्ञान ही जीत का मार्ग है। ये जीत क्या होती है? ज्ञान ही मार्ग है, बाकी सारा तो पता नहीं क्या है। सोच के देखो ये चीज, इतना तो समय निकाल सकते हो ना।